Hi students, we'll try to solve exercise 5.2, that is it is from chapter 5, continuity and differentiability. Exercise 5.2, and the question is differentiate the functions with respect to x. So before that we'll see the derivative of standard functions. To solve this, we should know the derivative of standard functions and the rules to differentiate it. As you know, if the function is x power n, its derivative is n x power n minus 1. The derivative of x is 1. The derivative of x square is 2x. The derivative of root x is 1 by 2 root x. The derivative of log x is 1 by x. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is secant square x. Derivative of secant x is secant x tan x. Derivative of cot x is minus cosecant square x. Derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x. If a function, hint for to remember when the minus sign will come. If the function starts with the C letter, then we'll get a minus sign here. So for y is equal to cos x, you need to write minus, right? Minus sin x. Next, for cot x, and it is starting from letter C, so we'll get minus cosecant square x. So it is hint to remember a minus sign, right? Next, if a function is cosecant x and it is starting from letter C, it means you will get minus cosecant x cot x. So these are the list of certain standard functions. You need to remember this, and you have proof in UC first year by using the method of first principle, right? But here you need to just remember the derivative of the standard functions. Okay, next. So there are some rules to differentiate or to find the derivative. If you have two functions, if there is a plus sign over here, then the derivative is the derivative of y is dy by dx. So here you need to differentiate separately. Separate derivative of u plus separate derivative of v. Right. If there is plus sign, you need to differentiate separately. For example, y is equal to x plus sin x. So there are two functions and there is plus sign over here. So we need to differentiate. And the rule says that we need to differentiate both separately. Derivative of x is 1. Derivative of sin x is cos x. Next, if between two functions there is minus sign, here you need to differentiate separately. Y is equal to u minus v. Derivative of y is dy by dx, separate derivative of u, separate derivative of v. For example, y is equal to x minus sin x. So there are two functions and there is minus sign over here. So you need to differentiate separately. Derivative of x is 1 minus derivative of sin x is cos x. If there are two functions and they are in product form, so the rule says that keep the first function, differentiate the second, plus keep the second function as it is, differentiate first. For example, y is equal to x into sin x. So dy by dx is equal to, so consider x as u and consider sin x as v. So keeping first function as it is, differentiating second, that is cos x, plus keeping second function as it is, differentiating the first function. Derivative of x is 1, right? The rule says that keep the first function as it is. So keep the x as it is. Differentiate the second function, that is the differentiation, it is dv by dx. So derivative of sin x is cos x, plus keep the second function as it is. Differentiate first function. So the derivative of first function is 1. So keep the second function as it is. Differentiate the first function. Derivative of x with respect to x is 1.
Next, if it is u by v, quotient rule. If there are two functions and if they are in quotient form, so we need to apply this rule. So dy by dx is equal to denominator square. So in numerator we'll get v. In the numerator you need to write the denominator as it is, derivative of numerator minus numerator and derivative of denominator, right? For example, y is equal to sine x by x. So consider numerator as u and denominator as v. So differentiate applying this rule, and this rule says that you need to square the denominator term. So here the denominator term is x, so square it, you will get x square. In the numerator write v, that is v is x here, keep the denominator as it is, differentiate the function u, derivative of sin x is cos x, minus keep u as it is, differentiate v, and the v is x here, derivative of x is 1. So the answer is dy by dx is equal to x cos x minus sin x divided by x square. The rule says that we need to square the denominator, so we have squared the denominator, and in the numerator keep v, that is v is x here, keep x as it is, differentiate u. What is u here? Sine, derivative of sine is cos x, minus keep u is sine here, right? Keep u as it is, differentiate v, and the v is x here, derivative of x is 1. So we will try to differentiate trigonometry function, and we should know how to differentiate the trigonometry function. So this term 2x is called angle, right? 2x is called angle of sine, so it is trigonometry function. So to differentiate the trigonometry function, so we need to close the angle term. And the function is sine, the derivative of sine is cos, keep the angle term as it is, differentiate the angle term. So dy by dx equal to cos of 2x. As we know that 2 is constant, so we can write outside the derivative. So we will get x inside the derivative. 2 is constant, so constant term we can take outside the derivative. So dy by dx equal to cos of 2x into 2. So the derivative of x with respect to x is 1. So the answer is 2 cos 2x. Next, so we will try to differentiate another trigonometry function. So differentiating both sides with respect to x, close the angle term. The derivative of cos is minus sine, keep the angle term as it is, differentiate the angle term. The angle is 4x. So dy by dx equal to minus sine 4x. So 4 is constant, so we can take outside the derivative. So inside the derivative will get only x. So the derivative of x with respect to x is 1. Right. So the answer is minus 4 sine 4x. For example, if you have tan of x square, so it is also a trigonometry function. So differentiate, close the angle term. The derivative of tan is secant square, keep the angle term as it is, differentiate the angle term. The angle term is x square. As we know that the derivative of x square is 2x. Right. For example, another function is sine of under root x. So here we need to simplify this first. So we can write sine power 1 by 2. So if a function has power term, right? So we need to close the term inside the power. So differentiating both sides with respect to x. Here we have simplified, right? We have not differentiated.
we have simplified. We have written under root sin x as sin x power 1 by 2. If a function has power, so we need to close the term inside the power. So treat this as x. Treat this as x. So x power 1 by 2. It means it is x power root x. So what is x power 1 by 2 or root x derivative? 1 by 2 under root x, right? 1 by 2 under root x. So we have considered this term as x. So it is x power 1 by 2 under root x, right? It is like under root x or x power 1 by 2. And we know that y is equal to under root x, derivative is dy by dx is 1 by 2 root x. So if we differentiate this, you will get 1 by 2 under root, so x is sin x, and differentiate the term present inside the power, so we will get cos x. Derivative of sin x is cos x. For example, y is equal to under root cos x. So y is equal to, simplify this, we will get cos x power 1 by 2. Now differentiate, so dy by dx, close the term inside the power, so it is x power 1 by 2 or root x, and the derivative of root x is 1 by 2 root x. What is x here? What we have considered x? Here we have considered x as cos x. So we'll get 1 by 2 root x. So what is x? Cos x. And differentiate the term present inside the power. So derivative of cos x is minus sin x. तो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2. फर्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो अभी आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो आपको अभी पता है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको क्या करना है? एंगल टर्म को क्लोज करना है. तो दोनों साइड आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंगल को क्लोज करना पड़ेगा. तो आपने एंगल को क्लोज किया, तो यहाँ पे फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और आपको एंगल लिखना पड़ता है एज इट इज़. और आपको क्या करना पड़ेगा? अभी ये एंगल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो आपको आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म होता है 0. सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इज 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. सेकंड प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx. As it is a trigonometric function, so we need to close the angle term. So derivative of sine is cos ax plus b. तो आप साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज़, फिर एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी. ए एक्स का डेरिवेटिव x डिफ्रेंशिएट होगा सिर्फ, x का डेरिवेटिव 1. सो a इंटू 1 इज a प्लस, अब यहाँ पे b है, ठीक है, तो b का डेरिवेटिव होता है 0. a प्लस 0 इज a. देखिए यहाँ पे ax का डेरिवेटिव, ax में x से डिफ्रेंशिएट होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू a इज a, और b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा a प्लस 0 इज ax प्लस b. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम. डिफ्रेंशिएट करना है आपको दोनों साइड. y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव देखिए अंडर रूट एक्स को क्लोज कीजिए आप, तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स. ठीक है, तो अभी आपको एंगल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स. यहाँ पे देखिए एंगल को क्लोज कीजिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल रखिए, फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट कीजिए. तो माइनस साइन रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज़ 1 बाई 2 रूट एक्स.
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर पे भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर पे भी फंक्शन है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे फंक्शन है तो आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। अभी आप देखिए ये जो टर्म है ये u बनेगा, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर पे टर्म है वो v होगा। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है। तो अभी हम ये रूल अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो डिनोमिनेटर पे क्या करना है, वी स्क्वायर करना है। वी क्या है, कॉस, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी वी का स्क्वायर, ठीक है, वी का स्क्वायर, वी ये टर्म है। और न्यूमरेटर देखिए क्या है, ये रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वी क्या है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू, व्हाट इज़ यू, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस यू इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अभी आपको सिर्फ ये टर्म डिफ्रेंशिएट करना है, और आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल को क्लोज करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, एंगल को रखना है और आपको एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और बी का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अभी देखिए यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव इंटू सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे ये टर्म आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और ये वाला टर्म आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। अगर ये वाला टर्म आप डिवाइड करोगे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो एक कॉस यहाँ पे कटेगा, तो आपको रिमेनिंग टर्म यहाँ पे मिलेगा ए प्लस 0 इज ए, ये टर्म मिलेगा आपको कॉस ए एक्स प्लस बी। ये वाला टर्म कटेगा, यहाँ पे एक टर्म रहेगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस यहाँ पे सी लिखिए, फर्स्ट सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन, और ये टर्म प्लस के बाद जो टर्म है इसको डिवाइड करना है, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल नहीं होगा, अभी एज इट इज़ रहेगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपको पता है ये 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो ये 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट, ये रेसिप्रोकल फार्मूला है, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ये वाला टर्म 1 बाई सीकेंट होगा, ठीक है जी, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ये साइन एज इट इज़ रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ये साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से एक कॉस सी एक्स प्लस डी क्या बनेगा, टैन बनेगा, टैन सी एक्स प्लस डी। आपको क्या करना है, ये साइन यहाँ से कॉस लेना है, साइन बाय कॉस क्या होगा, टैन सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से आपने कॉस लिया और इसको लगाया आपने, तो साइन बाय कॉस क्या होगा, टैन। तो यहाँ पे एक टर्म रहेगा और एक 1 बाई कॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ये जो स्क्वायर था यहाँ से आपने एक टर्म लिया साइन के लिए, तो साइन बाय कॉस सी एक्स प्लस डी क्या बना, टैन सी एक्स प्लस डी। तो और एक टर्म रह गया यहाँ पे 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा टी वाई बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी
सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टैन सी एक्स प्लस डी, और ये 1 बाई क्या बनेगा, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। ये आपका फाइनल आंसर। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड। सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री है और ये सेकेंड का एंगल tan रूट एक्स है, तो एंगल को क्लोज करना है, तो ये बनेगा सेकेंड एक्स। और आपको पता है सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। तो सीकेंट एक्स तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, अभी आपने क्लोज किया वो टर्म एक्स होगा, यानी ये टैन रूट एक्स क्या बनेगा, एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना टैन रूट एक्स और टैन रूट एक्स। तो आपने क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, सीकेंट का डेरिवेटिव अप्लाई किया। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव एंगल को क्लोज करना है। ठीक है, एंगल को क्लोज करना है। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है, ये जो आपने क्लोज किया उसको एक्स कंसिडर करना है, और एक्स क्या है यहाँ पे, टैन ऑफ रूट एक्स, टैन ऑफ रूट एक्स। फिर एंगल टर्म को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, टी बाई डी एक्स टैन ऑफ रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट टैन रूट एक्स, सीकेंट टैन रूट एक्स टैन रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए। टैन का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, एंगल को क्लोज करना है, टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, एंगल रखना है, फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और एक बार देखिए, क्लोज द एंगल टर्म, डिफ्रेंशिएट सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, मगर यहाँ पे एक्स क्या है, टैन रूट एक्स। तो टैन रूट एक्स रखिए। तो सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपने किया। फिर जो आपने टर्म को क्लोज किया है, एंगल को अभी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज़, टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंगल टर्म एज इट इज़, फिर एंगल टर्म को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म है, यानी मल्टीप्लिकेशन में दोनों। ठीक है, ये u होगा और ये v बनेगा। तो अगर u इंटू वी है तो फर्स्ट फंक्शन रखना है, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस सेकंड फंक्शन को रखना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप सेपरेट लिख सकते हो साइड में। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन रखते हैं कॉस ऑफ एक्स क्यूब u एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अभी आप डी बाई डी एक्स लिखिए साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, प्लस सेकंड फंक्शन को रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव। ठीक है, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो आप ये होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये साइन होल स्क्वायर, यानी पावर के अंदर जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैं आपको ये सेपरेट डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ मैं आपको सेपरेट। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट साइन एक्स पावर 5। ठीक है, साइन एक्स पावर 5, ये होल स्क्वायर, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इसको सिंप्लीफाई किया। साइन एक्स पावर 5, ये स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखा है मैंने। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स,
और आपको पता है अगर पावर टर्म है, फंक्शन को पावर टर्म है तो पावर टर्म के अंदर जो टर्म प्रेजेंट है उसको क्लोज करना है, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ये टर्म को क्या कंसिडर करना है, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, मगर x क्या है अभी, साइन ऑफ x पावर 5, ठीक है। अभी जो पावर के अंदर टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x पावर 5, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल रखिए, फिर x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या करना है, x पावर 5 को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। x पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 5x पावर 4। तो और एक बार देखिए, ये टर्म को आपने ऐसा लिखा है, साइन x पावर 5 होल स्क्वायर। अभी डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। पावर है तो पावर के अंदर जो टर्म है, ठीक है, उसको क्लोज करना है, इसको x कंसिडर करना है। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये 2x, तो ये x होगा ना, तो x स्क्वायर इज 2x, x इज साइन x पावर 5। अभी क्या करना है, आगे पावर के अंदर जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस x पावर 5, ठीक है, कॉस x पावर 5, फिर x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4। तो अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन x पावर 5 कॉस x पावर 5 इंटू एक्स पावर 4 प्लस ये साइन स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स नहीं है, एक्स पावर 5 सिर्फ यहाँ पे है डी बाई डी एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, है ना, साइन एक्स पावर 3, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स पावर 3, फिर एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 और ये 5, 10 x पावर 4, 2 इंटू 5 10 x पावर 4, ठीक है। तो कॉस x पावर 3 और एक कॉस है x पावर 5 और ये साइन है साइन x पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं 3x स्क्वायर लिखिए फर्स्ट, ठीक है, 3x स्क्वायर लिखते हैं, फिर साइन स्क्वायर x पावर 5, फिर साइन x क्यूब लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर कॉट है, अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है और कॉट का एंगल एक्स स्क्वायर है। तो अभी हम फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 2, ये टर्म को आप लिख सकते हो, देखिए 2 एज इट इज़, ये कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये अंडर रूट जो है ये 1/2 बनेगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई किया है मैंने सिर्फ, अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं। और आपको पता है अगर फंक्शन का पावर 1/2 हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, फंक्शन का पावर है तो पावर के अंदर जो टर्म है उसको क्लोज करना है आपको, ठीक है। सो वी नीड टू क्लोज द टर्म प्रेजेंट इनसाइड द पावर। तो ये 2, तो मैंने ये क्लोज किया है, तो ये बना x पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 क्या होता है, x पावर 1/2 इज नथिंग बट रूट एक्स, तो ये रूट एक्स के जैसा है ना, रूट एक्स या x पावर 1/2, ठीक है। x पावर 1/2 या रूट एक्स, ठीक है, दोनों सेम है। x पावर 1/2 या y इज इक्वल टू रूट एक्स, दोनों सेम ही है। दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रूट एक्स के जैसा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। पावर देखिए 1/2 है, यहाँ पे पावर देखिए 1/2 है, तो पावर के अंदर जो टर्म है उसको x कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये क्या बना, x पावर 1/2, x पावर 1/2, तो x पावर 1/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, यानी ये x बना, तो x लिखते हैं यहाँ पे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर पावर के अंदर जो टर्म होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल होगा, 1/√कॉट एक्स स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस, पता है ना कॉट का डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल है एक्स स्क्वायर। फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर।